پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ زندہ مسیح کے مبارک اور جلالی نام میں آج پھر آپ تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں اور مسیح خداوند کے جی اٹھنے کی عید یعنی عید قیامت المسیح کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مل کر میں بائبل مقدس کی سب سے آخری کتاب کے آخری باب میں ہوں، ہم مل کر مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس باب میں ہم مستقبل کے بارے میں جو ہماری امید ہے خداوند یسوع مسیح میں، اس سے متعلق کہ ہم بعد از مرگ جو مسیح یسوع میں ہیں ان کی ابدیت یعنی ابدی منزل کون سی ہوگی، اس باب میں ہم اس منزل اور اس مقام اور اس جگہ سے متعلق سیکھ رہے ہیں۔ اور یہ مکاشفہ 22 باب ہے اور اس کی تیسری آیت پر ہم آج غور کریں گے، لیکن اس تیسری آیت کی تشریح و تفسیر کے لیے لازم ہے کہ میں پہلی 2 آیات بھی تلاوت کر لوں تاکہ آپ کے اذہان میں یہ ہو کہ یہ تیسری آیت اس سے پہلے کون سی باتیں ہیں جن کے ساتھ اس کی کڑی ملتی ہے۔ تو غور فرمائیے گا، کتاب مقدس میں لکھا ہے، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا، اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ یہ 2 آیات میں نے تلاوت کی، تیسری کرنے لگا ہوں، لیکن یہاں پر یہ بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ ان 2 آیات کی تفسیر جاننا چاہتے اور واقعی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر جائیں یا میری ویب سائٹ پر newlifeinstitute.org میں، اور پھر آپ ٹیچنگ ویڈیوز میں جائیں، پھر نیو ٹیسٹمنٹ میں اور پھر ریولیشن میں، اور آپ کو ماضی کی تمام ویڈیوز جو اس کتاب سے متعلق ہیں آپ کو وہاں پر موصول ہوں گی۔ اب آیت 3 یہاں لکھا ہے، اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے۔ یاد کیجئے ایک دفعہ پھر کہ وہاں پر کیا نہیں ہوگا، لکھا ہے لعنت نہیں ہوگی، اور وہاں کیا ہوگا، خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا، یعنی شہر نئے یروشلم میں، اور وہاں پر خدا کے بندے خدام اس کی ستائش اور اس کی پرستش اور اس کی عبادت کریں گے۔ یہ آیت بہت مختصر سی ہے اور وقت بھی چونکہ مختصر ہے، اور اس مختصر سے وقت میں تھوڑی سی اس کی تفسیر اور تشریح کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہم جان پائیں
کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا ہے. جب لکھا ہے کہ وہاں لعنت نہ ہوگی تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. اس آیت میں اور بقیہ آیات میں ہم لعنت کے نہ ہونے کی بابت، خدا اور برا کے تخت اور وہاں پر خدا کے لوگوں کی عبادت اور ستائش اور پرستش سے متعلق ہم سیکھتے ہیں. ایک اور بات، جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو یہ لفظ جو لعنت ہے، کرس، یہ ایک بڑا عجیب سا لفظ ہے. کوئی بھی اپنے لیے اس لفظ کو پسند نہیں کرے گا. ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہے گا کہ مجھ پر خدا کی برکت ہو اور میرے لیے کوئی برکت ہی چاہے. یہی ہم چاہیں گے کہ میرے لیے دوسرے لوگ برکت کی دعا کریں. لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ میں نے اور آپ نے آدم اول میں ہو کر باغ عدن میں رب کی نافرمانی کی اور جس مقام پر ہم پہلے تھے اس مقام سے ہم گر گئے، ہم زوال پذیر ہو گئے، گناہ کی گرفت میں ہم آ گئے اور ہم خدا کے حضور جو پہلے برکت کے حامل تھے اب وہ ہم سے چھن گئی اور ہم نے اپنی من مانی کر کے لعنت کو گلے لگایا. اور اس کا ذکر ہم پیدائش کی کتاب اور اس کے 3 باب میں بڑے واضح طور پر دیکھتے بھی ہیں کہ وہاں کیا ہے. 3 باب کی 16ویں آیت سے نہیں بھی پڑھوں تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں کیا ہے. پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا. اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے کیا ہوئی؟ لعنتی ہوئی. اوکے، آگے، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا. آیت 19، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا. اور جب میں نے کہا کہ ہم آدم اول کے وقت سے ہی ایک لعنت کے ماتحت رہے جب تک کہ اس لعنت کو برکت میں بدلنے والا لگ بھگ 2000 سال پہلے آ نہیں گیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اس حقیقت کو بھی جانتے ہیں کہ اس نافرمانی کے سبب سے جو لعنت ہے اس میں بہت کچھ ہے جو ہمارے حق میں نہیں ہے، ہمارے برخلاف جاتا ہے. اس میں دکھ ہے، تکالیف ہے، آنسو ہے، درد ہے، بیماریاں ہیں، خاندانوں میں پیچیدگیاں ہیں، خون خرابہ اور کشت و خون ہے، اور مرد کا سخت محنت سے
काम करना है और इवन इस लिस्ट का इजाफा होता चला जाएगा अगर मैं बताता चला जाऊं तो। लेकिन सबसे बड़ा मौत का डंग है जो ये लानत हमारे लिए लाई, फिजिकली मौत और खुदा से जुदाई की मौत। मौत दो तरह की है, एक तो रूह और जिस्म की जुदाई, क्योंकि मौत के माना जुदाई के हैं, और दूसरा खालिक और मखलूक की जुदाई। और ये दोनों जुदाइयां इस गुनाह के सबब से हम पर हावी हुई, नेचुरली, यानी फितरती तौर पर हम गुनाह के मातहत पैदा हुए हैं। अगरचे बहुत कुछ मैं यहां पर कह सकता हूं, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। इस दुनिया में जो मसीह यस्सु में हैं, उनकी लानत मसीह यस्सु ने सलीब पर अपने ऊपर ले ली। इसीलिए तो कलाम में आया है कि वो हमारी खातिर लानती बना। कितना बड़ा लफ्ज है, क्योंकि मेरी और आपकी लानत, मेरी और आपकी बीमारियों, मेरे और आपके गुनाह की लानत मसीह यस्सु ने अपने आप पर ले ली। यही तो मोहब्बत इलाही है कि मसीह मर गए और फिर दफन हुए, और जो बात बाकी तमाम लोगों से उनको मुनफरिद ठहराती है वो ये कि आप मुर्दों में से जी उठे और वो आज भी जिंदा है। और जो काम 2000 साल पहले इस धरती के सीना पर करते थे, चूंकि वो जिंदा है, इसलिए आज भी वो वही काम करते हैं रूहुल कुद्स के वसीला से और अपने खुदाम के वसीला से, जिनके दिलों के तख्त पर खुदावंद यीशु मसीह तख्त नशीन है। अब जो ये आयत है वो ये कहती है कि खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा। याद कीजिए कि जब हम उस शहर की बात करते हैं तो इससे मुराद वो नया शहर यरूशलेम है, इसके अलावा कोई और शहर नहीं है। ये जो प्रेजेंट यरूशलेम है इसकी बात नहीं हो रही। एक नए शहर यरूशलेम की बात हो रही है, जहां पर जिनका मैंने जिक्र किया उनमें से कुछ नहीं होगा, मासवा इसके कि खुदा और बर्रा यानी खुदावंद यीशु मसीह वहां पर तख्त नशीन होंगे और उनकी बादशाही को वहां पर कोई खतरा नहीं होगा कि वो माजूल हो जाएंगे, क्योंकि वो साहिब अख्तियार हैं और उनके पास वो अख्तियार है जो दुनिया के किसी राजे महाराजे के पास नहीं है। और फिर ये तख्त खुदा के फजल और खुदा की रास्तबाजी का तख्त होगा, जहां पर मुकम्मल तौर पर खुदा की रास्तबाजी और पाकीज़गी का माहौल होगा। खुदा जो खुद पाक है वो और खुदा के पाक किए हुए लोग वहां पर मौजूद होंगे खुदावंद खुदा के साथ। एक और बात जो यहां गौर तलब है और वो ये है कि वहां उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। एक बार फिर इस बात का जिक्र करता चला जाऊं कि लानत नहीं होगी, मुकम्मल तौर पर पाकीज़गी और रास्तबाजी उस शहर
नए यरूशलेम में होगी। खुदावंद के पाक किए हुए लोग, मुकद्दस लोग वहां पर होंगे। अहद अतीक के अंबिया और अहद जदीद के मुकद्दसीन, वो वहां खुदा के तख्त के सामने होंगे। और बाय द वे, मैं और आप जो यहां इस वक्त ऑनलाइन खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम को सीख रहे हैं, जरा अपने आप से पूछिए, सवाल कीजिए कि मैं भी ईमान में इस कदर मजबूत और साबित कदम हूं, मुझे यकीन है कि मैं भी वहां पर हूंगा। और सोचना यह है कि होगा तो क्यों होगा, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और अगर कुछ पता नहीं बीच में है तो फिर गैर कौमों में और आप में से वो जो बीच में है, आप में कोई फर्क नहीं है। जानते वो भी नहीं और जानते आप भी नहीं। भले हम मसीह की वलादत की ईद मनाएं या क़यामत की ईद मनाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक के हम बीच से निकलकर साइड पर हो जाए। काश के तुम, कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है, सर्द या गर्म होते। बीच वाली जो नीम गर्म वाली हालत है ना, वो मुंह से थूक देने की है। इसलिए अगर आप में से कोई अभी भी है जो अपने मुस्तकबल के बारे में नहीं जानता और नहीं जानती कि मैं कहां हूंगा, तो असल में तो ये आपके कलीसाई रहनुमाहान का काम था कि वो आपकी मदद करते। देर तो ऑलरेडी हो गई है, लेकिन खैर आप मायूस ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां कहीं है, मेरे कहने पर नहीं, अगर पाक रूह आपको कायल करता और कन्विक्ट करता है, खुदावंद के हुजूर अपने गुनाहगार होने का इकरार कीजिए, नंबर 1। और नंबर 2, अपने इन गुनाहों से खुदावंद के हुजूर सच्ची और हकीकी तौबा कीजिए, जिसका मतलब है अबाउट टर्न। नंबर 3, खुदावंद के हुजूर दुआ में ये कहिए, खुदावंद यीशु, मैं शुक्र अदा करता और करती हूं कि मेरे गुनाहों का कोई चारा घर नहीं था। आप आए और अपने लहू से सलीबे कलवरी पर मेरे गुनाहों का दाम चुका दिया। शुक्र हो। और खुदावंद, मैं आपको अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करता और कबूल करती हूं। खुदावंद, मैं अपने दिल को खोलती हूं और खोलता हूं। आप मेरे दिल में आ जाइए पाक रूह की सूरत में, और मेरे दिल में सकूनत कीजिए, राज कीजिए, मुझे अपनी फर्मा बरदारी में ले चलिए। और खुदावंद ऐसा करने के लिए तैयार है। कलाम में यह भी लिखा है कि खुदावंद अपनी आमद में देर नहीं करता जैसे बाज लोग समझते हैं, बल्कि वो तहम्मुल करता है कि हर एक की नौबत तौबा तक पहुंचे। और मेरे भाई, शायद खुदावंद तेरी इंतजार करते हैं कि तू खुदावंद की तरफ रजू लाए। मेरी बहन, शायद वो तेरा इंतजार करते हैं कि तू अपना तन मन धन मुझे दे। यही खुदावंद मुझसे और आपसे चाहते हैं। और उसके बाद खुदावंद हमें यह यकीन दिलाते हैं कि मेरे वसीला से तुम बाप के पास आ सकते हो।
मेरे वसीला के बगैर नहीं। और जो मसीह में होकर इस दुनिया से जाते हैं वो मरते नहीं बल्कि सो रहे होते हैं। अब यहां पर बात हो रही है खुदा के बंदों की, कि खुदा के बंदे उसकी इबादत करेंगे। ये जो लफ्ज बंदे इस्तेमाल हुआ है ना, ये बड़ा गहरा लफ्ज है। आप जानते हैं कि हमने कलाम मुकद्दस की इन आयात पर ही गौर नहीं किया, यानी आयत बा आयत ही मुतालिया नहीं किया। जरूरत पड़ी तो हमने अल्फाज का भी ऑपरेशन किया ताकि हम और बेहतर तरीका से इनके मीनिंग्स जान पाए। जो बंदा लफ्ज है असल में यह अरबी जबान का एक लफ्ज है जिसके माना अब्द के हैं, और उससे यह लफ्ज निकला है बंदा के। और फिर जो रब की बंदगी करता है उस बंदगी को हम इबादत करते हैं, और इबादत को के लिए जरूरी है कि कोई उसका माबूद हो। तो बंदा जो लफ्ज है इसके माना गुलाम के हैं। असल में यह एक मिसाल दी गई है गुलाम का लफ्ज, बंदा का लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ। पहले भी कई बार मैं जिक्र कर चुका हूं कि बाइबल के जमाने में कदीम अदवार में ऐसा होता था कि जो नौकर या गुलाम होता था ना, वो अपनी मर्जी से गोया कहते हैं कि सांस भी नहीं ले सकता था। जैसा मालिक हुक्म करता वैसे ही वो किया करता था, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं चलती थी। और यहां पर जो लफ्ज बंदा इस्तेमाल हुआ है वो गुलाम और नौकर के तौर पर नहीं बल्कि फर्माबरदार होने के एतबार से इस्तेमाल हुआ है। अब अगर कोई मुझे कहे या आपको कहे आप खुदा के बंदे हैं जी, और जी आप खुदा की बंदी हैं, हम शुक्रगुजार हैं उन लोगों के लिए जो ये हमें कहते हैं। मेरे लिए इससे बढ़कर कोई और टाइटल जरूरी नहीं है सिवाय इसके कि लोग मुझे खुदा का बंदा कहें। दैट्स ऑल, यही काफी है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है, जब कोई खुदा के लोग मुझे और आपको खुदा का बंदा कहते हैं तो उस वक्त हमें अपने आप में सोचना है, क्या मेरी बातें, मेरी हरकत, मेरी गुफ्तगू, मेरी जहनियत और नीयत और सोच, मेरे आमालो अफआल, तर्ज़े हयात ऐसा है कि मैं खुदा का बंदा कहलाऊं। ते जे कदी दाल विच कुछ काला काला नजर आउंदा है तो अपने पाप का इकरार करके खुदावंद की तरफ रुजू लाएं, वो हमें बहाल करना जानता है। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील पाक और उसके 15 बाब और उसकी 15 आयत में आपके सामने रखता हूं कि हम खुदावंद के गुलाम हैं, बंदे हैं, नौकर हैं या क्या है, क्योंकि बंदा के माना गुलाम और नौकर के हैं। यहां लिखा है यूहन्ना 15:15, अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा। हालेलुया। क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी
वो सब तुमको बता दी। तो आप समझ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है? एक तो ये कि जो मुकाशफा 22:3 में अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे, तो यहां लफ्ज इबादत भी और बंदा भी एक इस अंदाज से पेश हुआ है क्योंकि इबादत के माना भी फर्मा बरदारी के हैं, मुकम्मल तौर पर फर्मा बरदारी। याद कीजिए, इबादत सिर्फ गिरजा घर के अंदर नहीं होती, वहां तो हम रूहानी तौर पर रिचार्ज होने के लिए जाते हैं। इबादत का आगाज असल में जब हम गिरजा घर से पांव बाहर निकालते हैं ना, तो उस वक्त होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को कि दौराने हफ्ता जो फर्मा बरदारी खुदावंद के साथ है, उसका नाम इबादत है। गिरजा घर वाली इबादत वो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां तो हम इबादत में बैठे होते हैं। खुदावंद के रूह की हदायत से, खुदा में मसीह के जरिया से एक नया चैलेंज पाने के लिए, नई बात सीखने के लिए, बरकत पाने के लिए। लेकिन असल इबादत का आगाज तो उस वक्त होता है जब हम इबादत गाह से बाहर निकलते हैं, आईडी से साइन आउट होते हैं, और बाद में जो नेक्स्ट टाइम तक हमारी जिंदगी का हिस्सा है, वही काम का है। उस दौरान मैं और आप क्या करते हैं, यह सोचने की बात है। तो कहने का मतलब यह है कि यह तीसरी आयत में बंदा या बंदे और इबादत, यह हमारे समझने के लिए बात की गई है। जैसे कोई अपने साहब का फर्मा बरदार होता है, वैसे ही वो लोग जो इस दुनिया में खुदा के फर्मा बरदार और वफादार रहे, यही इबादत है। पौलुस रसूल रोमियो 12 बाब में कहते हैं ना कि तुम्हारी माकूल इबादत क्या है? अक्ल के नए हो जाने से अपनी रूहानी सूरत बदलते चले जाओ। अगर हम रूहानी सूरत को बदलते नहीं है, कुछ तब्दीली हमारी जिंदगी में नहीं आती, खुद फील नहीं होती, महसूस नहीं होती, तो निरी इबादतें जो गिरजाघर वाली है या आईडीज पर कुछ हैसियत नहीं रखती, कोई हैसियत नहीं रखती। इसको जरा सोचना है कि मैं बाकी जिंदगी में खुदावंद के साथ कितना वफादार हूं और कितनी वफादार हूं, यह सोचने का सवाल है। अब यहां पर हम यह भी देखते हैं कि खुदावंद के लोग वहां खुदावंद की इबादत करेंगे। इससे मुराद यह नहीं है कि पहले दुआ से शुरू होगा और फिर वो गीत गाएंगे और 3 गीत गाने हैं बस, और फिर उसके बाद फिर दुआ होगी और फिर उसके बाद कलाम होगा और फिर दुआए रब्बानी होगी और कलमाते बरकात होंगे, शायद रसूलों का अकीदा भी होगा। ये इबादत है? नो, ये इस दुनिया में हमारा सेटअप है। और मैंने कहा इबादत गाहों में जब हम जाते हैं तो यह सेटअप हमें इसलिए मिलता है कि हम अपने ईमान को रिवाइव कर सकें। लेकिन जब हम आसमानी वतन में होंगे तो वहां पर इस तरह के फॉर्मेट की जरूरत नहीं होगी। वहां पर खुदावंद की हम्दो सना 24/7
उसके नाम की जय जयकार, तमजीद, हम्द और स्ताइश करते रहेंगे। यही खुदावन मुझसे और आपसे चाहते हैं कि इस दुनिया पर भी खुदावन के हम फर्माबरदार रहें, और जो गालिब आएंगे, जो फर्माबरदार होंगे, वही उस शहरे यरूशलेम के वारिस होंगे। लानत मौकूफ हो जाएगी और हम बर्रा खुदा के तख्त के सामने मौजूद होंगे और हम उसके नाम की तमजीद और स्ताइश करेंगे। मेरे अजीज भाई और मेरी बहन, इस दुनिया में मेरी और आपकी जो जिंदगी है बहुत कलील और मुख्तसर है। कभी भी, किसी भी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। तो क्यों नहीं हम अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल दें, नंबर 1, और उसके बाद, या जिन्होंने दिल दिया हुआ है उसके बाद मैं भी और आप भी खुदावंद के साथ और ज्यादा वफादारी के साथ चलते रहें जहां तक मुमकिन हो सकता है, ताकि हम खुदावंद खुदा की हुजूरी में हूं। क्योंकि लिखा है, जो गालिब आएगा वही उस जिंदगी की बरकतों का वारिस होगा और उस शहर यरूशलेम में दाखिल होगा। हमें अपने आप पर गौर करना और देखना है कि हम किस तौर पर खुदा के साथ लगे हुए हैं और हमारा दिल कहां है। एक आखिरी आयत तिलावत करने के बाद फिर मैं दुआ करूंगा, और ये मकाशिफा 3 बाब और उसकी 21 आयत है। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हूं वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदाबंद खुदा मुझे और आपको हर तरह की आजमाइश पर गालिब आने का फजल अनायत फरमाए, ताकि हम खुदाबंद के जलाल और खुदाबंद की बुजुर्गी के लिए ऐसन तरीका से इस्तेमाल और खर्च हो सके। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। अगर आप अपना जीवन खुदावंद के स्पुर्द करना चाहते हैं तो अभी वक्त है। इस दुआ के दौरान आप ऐसा कर सकते हैं। जिस्मानी शिफाओं के पीछे भागने के बजाय अपनी रूहानी शिफा के लिए पहले खुदावंद के हुजूर दुआ कीजिए। अगर जिस्मानी तौर पर हम ठीक हो भी जाएं, लेकिन जाएं फिर भी जहन्नम में, तो फिर इस शिफा का क्या फायदा। इसलिए लाजिम है कि आए पहले अपने मन खुदाबंद के सुपुर्द करें। और आसमानी बाप, आज शब में आपकी हजूरी में आपके लोगों के लिए शुक्रगुजार हूं कि गौर से उन्होंने आपके कलाम की बातों को सीखा है। मुल्तजी हूं कि अपने लोगों पर करम कीजिए, और वो जो अपना दिल आपको दे रहे हैं, नया जीवन पा रहे हैं, उनको गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी का यकीन दिलाइए। और वो तमाम जो बीमार हैं, लाचार और परेशान हाल हैं, खा किसी ही किस्म की आजमाइश में मुब्तला क्यों नहीं, निकालिए खुदावंद खुदा, ताकि आपके लोग आपके नाम को और ज्यादा जलाल दे सके। और मुझे भी और हम में से हर एक को फजल अनायत फरमाए कि जब तक हमारे पांव इस धरती पर हैं, हम आपकी फर्माबरदारी में अपनी जिंदगी गुजारते चले जाएं।
हम सबों को बरकत दीजिए, हमसे बोलिए और हमसे कलाम कीजिए, क्योंकि मांगता हूं अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबों को भारी बरकत अनायत फरमाए। फिर मिलेंगे अगर खुदावंद यीशु मसीह जल्द ना आ गए तो। तब तक के लिए खुदा हाफिज।